اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ حسن، حسن، ماں کی جان، کہاں دیکھ رہے ہو؟ تمہارا غم کافی نہیں تھا جو اب خود کو ماں کی نگاہوں سے دور کر رہے ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ عالم برہوت ہے یا قیامت سے پہلے ہی میدان حشر برپا ہے؟ میری طرف دیکھو، کچھ تو بولو تاکہ یقین ہو کہ تمہاری موت کی خبر سچ نہیں۔ میرے دل کو راحت بخشو میرے لال، یہ اذیت ختم کرو۔ تم سے کہہ رہی ہوں حسن، 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 پانی کیوں تم نے ضائع کیا لڑکی؟ اسے چین نہیں آ رہا۔ اپنے چہرے سامنے نہیں لاتے، لیکن میں ان کی نگاہوں کو محسوس کر رہی ہوں۔ آخر کون کمبخت ہے جو دیکھ رہا ہے یہاں؟ ہاں کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ کہاں ہے، میں اس کی آنکھیں باہر نکال دوں گی۔
تمہیں خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو نہ چھپاؤ، اپنے آپ کو نہ چھپاؤ۔ آرام سے۔ کیا تم انہیں دیکھ سکتی ہو؟ کون ہے وہ؟ حسن ان کے ساتھ تھا۔ میرے حسن کو بچا لو، میں تم سے التجا کرتی ہوں، میرے حسن اس کی آنکھوں کو تو کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرے حسن کو بچا لو، میری دنیا کو اندھیر مت کرو، میری دنیا کو اندھیر مت کرو۔ وہ عربی ہے یا عجمی؟ حسن ان کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا ہے، وہ مجھے دیکھے بغیر چلا اپنے گیا۔ آپ کو قابو میں رکھو، تمہاری یہ پاگلوں والی باتیں سننے تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر انہوں نے جان نہیں لی تو میں مار دوں گی۔ کل کو تم ہی مجھے دعا دو گی کہ میں نے تمہیں ایسے باندھ کر تمہاری زندگی کو خود تم سے ہی نجات دلائی ہے۔ آرام سے باندھو، اس کا زخم تازہ ہے، کھل جائے گا۔ اگر میں نہ باندھتی تو اپنے بیٹے کے غم میں خود کو ہلاک کر لیتی ہے۔ اس قدر حسن نہ کرو، وہ تمہارے لیے شرمساری کا باعث ہے۔ دیکھو اپنے ساتھ کیا کیا ہے تم نے۔ واقعی حسن کی موت شرم کا باعث ہے؟ وہ مرا نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، میرا یقین کرو۔ سنی سنائی باتوں کا کیا بھروسہ۔ آج دن میں مرنے والوں کے بارے میں جب بتا رہے تھے تم نے خود کہا تھا ان میں سے ایک حسن ہے۔ شاید اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو اور اب اپنے ہی کہے پر پشیماں ہو۔ کیا غلطی؟ اسے امید مت دلاؤ، سچ سمجھنے دو تاکہ اسے چین آ جائے۔ اس کے غم کو تازہ کیوں کہہ رہی ہو؟ میں چاہتی ہوں اس کی جان بچ جائے، کمعقل۔ اس کی جان اپنے اکلوتے بیٹے حسن میں تھی۔ اس نے خود ہی اپنی اس جان کو خطرے میں ڈالا اور خود ہی اس نے حسن کو بھگانے کی راہ بھی ہموار کی۔ وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب بھی نہیں رہا، نہ جنگ کے لیے اور نہ ہی اپنی ماں کے لیے۔ غم کو تازہ نہیں کرو، پہلے ہی حسن کے فراق نے اس کی یہ حالت بنا دی ہے۔ اس کی ساری پریشانی اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے نہیں۔ پتہ نہیں اس بیابان میں ایسا کیا ہے جو وسوسوں کو جنم دیتا ہے۔ کل میں نے بھی کچھ سائے دیکھے۔ ام حسن کی بیماری تمہیں بھی لگ گئی۔ یہ طنز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں طنز نہیں کر رہی۔ جلدی کرو لڑکی، سورج نکلتے ہی اس یاجوج ماجوج کے لشکر کو بھوک لگ جائے گی، اور اگر کھانے میں دیر ہوئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ کہاں ہو تم حسن؟ تھوڑا صبر کرو، اتنا پریشان نہ ہو، تم نے اپنے بیٹے کو اچھی جگہ بھیجا ہے۔ اگر وہ مر گیا ہو تو اس کی شرمناک موت کو کیسے برداشت کروں گی؟ ہمارا زندہ رہنا شرمناک ہے، نہ کہ حسن کی موت۔ کہاں ہو حسن؟ ہانیہ، تم تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ کب سے یہاں ہو؟ کل رات سے۔ کھاتے اور سوتے نہیں ہو؟ میری بھوک اور نیند کسی نے چھین لی ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ بس اسی کی تلاش میں آیا ہوں۔ لشکر کی طرف لوٹ جاؤ، صبح ہونے تک یہاں پر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ غصہ مت کرو ہانیہ۔ میں غصہ نہیں کر رہی، تم بے شرمی کی حد سے گزر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ ام سعید کو آواز دوں۔ چلا جاؤں گا، تمہارے لیے خبر لے کر آیا ہوں میں۔ اب کسی اور کو مصیبت میں ڈالنا ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا؟ اس نے خود ہی کہا تھا کہ لاشوں میں سے اگر کسی جوان کو دیکھا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس کی موت کا اعلان کرنا ضروری تھا؟ میں نے جو دیکھا تھا بس وہ بتایا۔ جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ ادھر دیکھو ذرا، کیسا لگ رہا ہوں میں؟ سب کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے خدا نے تمہارے لیے خاص طور پر یہ جنگلی لباس بنوا کر بھیجا ہے۔ ویسے تم نے اس طرح منہ کیوں بنا لیا ہے؟ تمہیں پسند نہیں آیا؟ تم آخر میرے لگتے کیا ہو جو میں اپنی پسند یا ناپسند کا تمہیں بتاؤں؟ تمہارے بابا نے ہی شرط رکھی تھی کہ پہلے کوئی کام دھندا کروں، اس کے بعد تمہارے لیے رشتہ لے کر آؤں میں۔ اس لشکر سے مجھے بہت سے سکے ملنے والے ہیں۔ تم تو بزدل تھے۔ عاشق ہونے کے لیے شیر کا دل چاہیے۔ تمہاری فضول باتیں سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ کہتے ہیں کہ جو آج تلوار حمائل کر کے آئے گا اسے انعام میں بہت سے سکے دیے جائیں گے۔ تم تو جانتی ہو مجھ میں تلوار چلانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بس تمہاری خاطر۔ میں چلتا ہوں اس سے پہلے کہ سپاہی آ کر مجھ سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ہانیہ، ایک شکستہ دل عاشق کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔
जल्दी उठ जाओ। ये क्या कोई सोने का वक्त है? तो मैं कह रहा हूं हमारा अब नींद से जाग जाओ कि हमारी अबदी नींद में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उठ जाओ। मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ने रात इसलिए बनाई है कि उसकी मखलूक आराम कर सके। जरा उठकर देखो, यहां खैमे में नकब लगी हुई है। ये तुम्हें डर है कि यहां से कोई अंदर आया होगा? तुम्हारा शोर इन तहरीरों की कद्र और अहमियत तक नहीं पहुंच सकता। मेरी अकल इतना तो समझती है कि यहां से कोई बकरी का बच्चा भी आसानी से नहीं गुजर सकता। चोर कैसे आएगा? सुनो, तुमने किसी को यहां तो नहीं देखा? कोई बाहर से कहीं इस खैमे में दाखिल तो नहीं हुआ था? हाँ? चिल्लाओ मत। ये गूंगा है या गधा है? तुम्हें दारुल खिलाफा ले जाया जाए ताकि लोगों को हंसाओ। तुम्हें न जंग आती है न किताबत। आखिर क्यों कोई यहाँ इन तहरीरों की तलाश में आएगा? इन सबको अच्छे से देखो, कुछ कम न हुआ हो। यहाँ क्या लेने आए हो? मुसाफिर हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैदान जंग में किसी खातून को देखूंगा। मैंने भी अभी तक कोई सिपाही जंगी लिबास के बगैर नहीं देखा। सिपाही नहीं हूं। अगर जंग देखने के लिए आए हो तो जान लो, जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान का फासला तलवारों और चीखों पुकार की सदाओं से पुर हो जाएगा। जंग से कोई सरोकार नहीं। इस बयाबान में तफरी की गर्ज से आए हो? हानिया, कहाँ हो लड़की? बावर्ची खाने के काम अभी भी रहते हैं। क्या कह रहा है ये? नहीं जानती। हमारे खैमे में किस काम से आए हो? दरअसल मैं एक चरवाहा हूँ, नजदीकी देहात से आया हूँ ताकि अपनी तफरी के लिए मुनासिब दिन नहीं है। मैं तफरी की गर्ज से नहीं आया यहाँ। फिर आने की वजह? यहाँ सबकी जबानें इतनी तल्ख क्यों हैं? दूसरे खैमे वालों की जुबानें तलवारों की तरह हैं। कहीं तुम वही चरवाहे तो नहीं जो 2 दिन पहले सिपाही चंद भेड़ लाए थे पकाने के लिए? 20 भेड़ थे वो। उन्होंने कहा था चरवाहा आएगा और अपने सिक्के ले जाएगा। ये कातिबों का बावर्ची खाना है, हम औरतों का कोई अमल दखल नहीं। अपने सिक्कों का तकाजा उस खैमे के मर्दों से करना चाहिए तुम्हें। आप इब्ने सबीक नाम के किसी शख्स को जानते हैं? यहाँ हजारों सिपाहियों में से कोई एक ना एक तो होगा ही। मैंने सुना है कि इब्ने सबीक करबला की तरफ आया है। कब और किस काम से आया है जानते हो? हर रोज सैकड़ों लोग इस लश्कर में शामिल होते हैं। अगर मालूम हो कि कब आया है और किस काम से, तो शायद उसे ढूंढ पाओ। आज बहुत खतरनाक दिन है। इंसान अपने आप को ही गुम कर देगा, तो फिर कैसे मुमकिन है तुम उस शख्स को ढूंढ पाओ? सही कह रही है। कल रात से इस बयाबान में अजीब व गरीब आहटें सुनाई दे रही हैं। ये बयाबान खतरों को जन्म देता है। तलवारें नियाम से बाहर हैं। खून और जुनून की बू महसूस नहीं कर रहे? पहली गलती तुम्हारी ये है कि आज के दिन अपनी रकम के लिए आए हो, और दूसरी गलती अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अगर अपनी जान प्यारी है तो किसी को तलाश ना करो, खामोशी से उस खैमे में जाओ। सोच क्या रहे हो? उस औरत को नहीं देख रहे? क्या वो कैदी है? जान से जाती है अगर बांधते नहीं। यहाँ के जमीन और आसमान परेशानियों को जन्म देते हैं। सीधे साधे चरवाहे लग रहे हो मुझे। तुम भी मुब्तला हो सकते हो। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, उस खैमे के भेड़ियों से अपना हक लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे साथ आओ और तुम खैमे में जाओ। पानी की मशकें भर के यहाँ सामने रख दो। ये तो मेरे हसन के कदमों की आवाज है। हसन, माँ कुर्बान जाए। इतना हसन हसन करो कि वो तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन जाए। आ जाओ,
अब ये बेजबान क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई इस संदूक की तरफ नहीं गया। ये संदूक पर सांप बनकर बैठा रहता है, फिर कोई कैसे जाएगा इस संदूक तक? इस तरह से देखता है जैसे मैंने इसके बाप का कर्ज देना है, देव कहीं का। यकीनन फिर वो तुम्हें पहचान गया होगा। मैं इस संदूक पर निगाह डालने की जुर्रत कर सकता हूं? इन सफों के दरमियान अबू राफे की तहरीर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, खुद देख लो। मैं देखता हूं। तुम सही कह रहे हो, इनमें तो कोई रब्त नहीं है। हमारा ये देखो, ये वही तहरीर नहीं? पढ़ो। इस तहरीर में लिखा है रात है और सूरज तुलू होने ही वाला है। लश्कर इस्लाम हमले के लिए तैयार था और ऐसे में दुश्मन ने मोहलत मांग ली। अमीर के पास ऐसा लश्कर था जो असलहे और ईमान से लैस था, जान हथेली पर और इरादे मुसम्मा। आज सुबह अमीर का एक कासिद पहुंचा। सलाम और हो फिर- मोहतरम कातिब पर। ये शख्स चरवाहा है और अपनी भेड़ों की रकम लेने आया है। भेड़ों की? जी बिल्कुल वही जिसका 2 दिन पहले गोश्त खाया है। तुम्हारा नाम? हातिम। बाप का नाम बताने के लायक नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ अपने अजदाद के नामों पर फख्र नहीं किया जाता, खुद को काबिल फख्र बनाते हैं। तुम अरब हो? यही नजदीक का रहने वाला है। कैसे बेरस्म रिवाज अरब। मैं चाह रही हूँ इसकी रकम इसे दे दीजिए, कहीं इस जंग में बेगुनाह ना मारा जाए। हम कातिब हैं, यहाँ कलम व दवात और अल्फाज हैं और कुछ नहीं। हमें सिक्कों से कोई सरोकार नहीं। अमीर के खेमे में जाओ, तुम्हारा काम वहीं होगा। अमीर का खेमा तो लश्कर के दरमियान में है। ये बेहस्ब नस्ब तलवार उठा लेगा। अबू शुजा का संदूक इस खेमे में है। वो खुद नहीं है, ये वहशी इसकी निगरानी कर रहा है, जो ऐसे देखता है जैसे अभी खा जाएगा। चरवाहे को ले जाओ यहां से। चलो यहाँ से। ये चरवाहा कौन था? नहीं जानता। कहीं अबू अजीज की जगह अबू राफे का नाम तो नहीं लिख दिया और उनकी तहरीरें मखलूत हो गई हों? उन दोनों की लिखाई को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। वो जो तुम्हारे हाथ में है वो अबू राफे की तहरीर है। आखिर कौन हो सकता है जो यहां आए और सफे चुरा कर ले जाए? यहां से कोई गुजर ही नहीं सकता। एक बार फिर पूरे ध्यान और मुकम्मल गौर से देखो। इसके इंकिशाफ से पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खैमे के उस तरफ खड़ा था और मैदान की तरफ देख रहा था कि ये बेज़बान खैमे से बाहर आया और खौफ की हालत में मुझे अंदर खींच लाया। मुझे ये डर है कि वो भी तुम्हारी तरह सो गया हो और कोई हमारी नजरों से ओझल होकर खैमे में दाखिल हो गया हो। ये भी तो मुमकिन है ना हमारा। अगर तहरीरें नहीं मिलती हैं तो उन्हें हम खुद लिख लेते हैं। अमीर की शान में मैं लिख सकता हूं। क्या अबू नौमान मर गया है जो तुम जैसे कम अक्ल और कम तजर्बेकार के हाथों तारीख में किसी तरह की तहरीफ हो? ये अजान पहले जैसे नहीं है। ये हुसैन के खैमों की तरफ से आ रही है। रूह है अल्फाज में। लगता है फरिश्ते मुअज्जिन के दहन से अल्फाज लेकर हम तक पहुंचा रहे हैं।
یہ کس کی آواز ہے؟ نہیں جانتا. رسول خدا جیسی آواز ہے، شیریں و خوشگوار، اپنے دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالتی ہوئی، پیغمبر کی تلاوت قرآن جیسی آواز. تم لوگوں کو بھی اس آواز کے جادو نے جکڑ رکھا ہے. یہ اذان کون دے رہا ہے؟ حسین نے علی اکبر کو اذان دینے کے لیے کہا ہے. اس کا کوئی خاص مقصد؟ حسین کی جان ہے اپنے اس بیٹے میں. جنگ کی صبح اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اذان کے لیے منتخب کرنا. یعنی اب جو بھی اس طرف ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. اس بیابان میں اور کوئی بھی مؤذن تھا؟ ابو عزیز کا دھیان رکھنا کہیں تحریروں کی طرف نہ جائے. میں نہیں چاہتا اسے معلوم ہو کہ ہم سے کچھ کم ہو گیا ہے. اگر اسے پتہ چلا تو فوراً خلیفہ کو خبر پہنچائے گا اور پھر شاید ہمارے جنازے بھی گھر نہ پہنچے. یہ بیچارہ کیا کرے؟ ویسے وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کچھ وقت پہلے تک تو اجنبی تھا اور اب ہمدردی کا رشتہ ہے. ترس آتا ہے اس پہ. چاہتی ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اس رحم دلی کو لے جاؤ باورچی خانے والے خیمے میں، اس سے پہلے کہ بھوکے کوفی اور شامی تمہاری جان کے دشمن بن جائیں. جا رہی ہوں میں. آپ اس کی رقم کو طوفان میں ڈوبنے سے روک لیجیے. چرواہے کا میدان جنگ سے کیا واسطہ؟ کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے تمہیں. میرا خیال ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھوں کو وہاں جا کر باندھ لو. صندوق جو آپ کے خیمے میں سکوں سے لبالب بھرا ہوا ہے، اس صندوق کا مالک ابو شجاع ہے. چند سکے اگر کم ہو جائے تو کس کو پتہ چلے گا؟ وہ محافظ جو خیمے میں بیٹھا ہے اس کی نظر بھی اس کے خنجر کی طرح تیز ہے. یہ بیچارہ کیا کرے پھر؟ صبر کرے جب تک ابو شجاع پہنچتا ہے. تعجب ہے، اس وحشی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نظر آئی. کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہنس رہا ہے. اس گرمی نے اس کے مغز کی بچی کھچی نمی کو بھی خشک کر ڈالا ہے. تمہارا اس سے کوئی کام نہیں. اصول ہے جو بول نہیں سکتا اپنا غصہ خنجر کے ذریعے نکالے گا. یہ رہی تحریریں اذان صبح تک کی. یہ کس لشکر کی ہیں؟ یہاں تو کچھ نیا نہیں تھا، وہی ہر رات کی طرح تساہل اور اضطراب. تو تم کاتب حسین تھے آج رات؟ کیا کروں کہ اس جنگ کے عجائب اسی طرف سے نمودار ہوتے ہیں. اندھیری رات ہے اور روشن بیابان. جنگ کے دونوں اطراف سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. اگرچہ یہ جنگ کی خصوصیت ہے کہ وہ اضطراب کو جنم دیتی ہے اور امید کا گلا گھونٹتی ہے، مگر حسین کے خیموں کے احوال نے مجھے اپنے لشکر سے بالکل الگ کر دیا. دشمن کے خیموں کے نزدیک؟ میں اندھیرے میں چھپ گیا تھا. کیا دیکھا؟ ایسا امیر لشکر جس سے لوگ دلی طور پر وابستہ ہیں. رات جب وہ اپنے پیروکاروں کے درمیان میں موجود تھا، ایسا لگتا تھا جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہو. حسین نے کہا کہ وہ چلے جائیں. انہوں نے اپنے اصحاب سے بیعت واپس لے لی تھی. اس لشکر کا امیر بہت عجیب لگا مجھے، جو جنگ اور مقابلے کی ایسی فضا میں گنتی کے اصحاب سے بھی بیعت واپس لے لیتا ہے. کتنے لوگ چھوڑ گئے؟ چھوڑ گئے، بلکہ اپنے امیر کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اظہار محبت کیا. ہر ایک اس امیر کی خاطر اپنی 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار تھا. سب کو موت کا اشتیاق ہے. جیسے تم بتا رہے ہو پھر تو وہ زیادہ ہیں. اس جذبے کے ساتھ
हर एक को 2 के बराबर गिना जाना चाहिए। 10 के बराबर 100 बार जाने कुर्बान करेंगे उसकी खातिर। काश तुम वहां होते और देखते। हुसैन के जानिसारों की रात तिलावत कुरान और दुआ व मुनाजात की रात थी। रात में अबू राफे के साथ मैदान में गया था। कुछ लोगों को हुसैन के खैमों के पीछे देखा। बताओ वहां पर कौन लोग थे? हुसैन ने खैमों के पीछे खंदक खोदी है। उसके असहाब ने पूरे जोश और जज्बे से उसका साथ दिया और खंदक को लकड़ियों और कांटों से भर दिया। यकीनन वो चाहते हैं कि जंग आमने सामने ही लड़ी जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कूफी खबीसों में बेगैरत लोगों की कमी नहीं। आधी रात का वक्त था कि असहाब हुसैन ने तलवारों को नियाम से निकाला। बगावत? मुझे यही महसूस हुआ। मैंने इरादा किया कि फौरन वापस पलटूं और अमीर को इस वाक़े से बाखबर करूं। अचानक हबीब इब्ने मज़ाहिर की आवाज़ सुनाई दी। सब आखिरी खैमे के बाहर इकट्ठे हो गए थे। वो जो खैमा पोशीदा था। खवातीन का खैमा। खवातीन के खैमे से उन्हें क्या काम? वैसे खवातीन बहुत परेशान थी हजारों के लश्कर को देखने के बाद। हुसैन की जिंदगी के लिए फिक्रमंद थी। आशिकाने हुसैन आए ताकि हुसैन के साथ वफादारी को साबित करें। हुसैन के असहाब शायद नहीं जानते, आज उनका काम तमाम है। हमारे लश्कर की तादाद इस सहरा की रेत के ज़रात की मानित है। उनके खैमे एक एक करके खाली होते जाएंगे और फिर आखिर में वो पोशीदा खैमा। हसन, माँ की जान, माँ, मेरी प्यारी माँ, ये रहा लश्कर का तफसीली और आखिरी मंजरनामा। जो भी देखा या सुना सब कलम बंद कर लिया। सलाम जनाबे कातिब। आपने मैदान से वापसी पर क्या अबू शुजा को तो नहीं देखा? दोबारा फिर वही? उस मशकूक अजनबी को जाने दो। जो भी अहले जंग नहीं क्या मशकूक है? कौन है ये शख्स? चरवाहा, जिसकी भेड़ों के गोश्त का 2 रात पहले शाहाना खाना खाया गया था। अल्लाह की कसम मेरे वालिद भी एक चरवाहे थे और एक दिन उनके पास कुछ सिपाही आए और उनसे 2 भेड़ें ले गए। जब तक वो जिंदा रहे उन भेड़ों का गम उनके दिल से नहीं गया। वो खुद कहाँ है? यही खैमे के बाहर अबू शुजा का मुंतजिर है। मैं क्या उसे अंदर बुलाऊं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। अजान से कबल देखा था उसे। अमीर के खैमे की तरफ जा रहा वो था। कब आएंगे? जो सिपाहियों से हमें पता चला है, जैसे ही सूरज निकलेगा तबले जंग बजा दिया जाएगा। अगर इस वक्त वो जंग में है तो फिलहाल वापसी मुमकिन वो नहीं। वापस जरूर आएगा, उसका सब कुछ यहाँ है। यहीं रहो जब तक अबू शुजा आता है। उन लोगों के सामने डट के खड़े रहो। तुम्हारे सिक्के उन्हीं के पास है, लेकिन अपनी जान से ना चले जाना। मैं बावर्ची खाने में जा रही हूँ, यहीं रुको। उसके क्या ये लोग भी इब्ने सबीक को नहीं जानते? अब इतने सादा भी ना बनो। बेहतर है इब्ने सबीक को भूल जाओ। जिसने भी तुम्हें कहा इब्ने सबीक सिक्के तुम्हारी हथेली पे रख देगा तो गलत कहा है। तुम नहीं जानते ये लोग शैतान को तरस देते हैं। कहीं अपनी सादा लोहे की वजह से अपनी जान ना गवा देना। यहीं रुको। ये अबू शुजा तो नहीं? सलाम अबू शुजा पर। ये चरवाहा है, 2 दिन पहले वाली भेड़ें ही सीखी थी। फिर अपने सिक्कों के लिए आया है। तुम्हें यहाँ सिक्के नजर आ रहे हैं? ये सब कातिब हैं बेचारे। वो भी कातिब है? वो मुहाफिज हैं।
कातिबों के खैमे को मुहाफिज की जरूरत है ताकि किसी अजनबी की तहरीरों तक रसाई ना हो। फिर वो सिक्कों के संदूक पे क्यों बैठा है? तुम्हारी जबान बहुत चलती है, मौत से पहले ही मरने की ख्वाहिशमंद हो। मैं इस बेचारे की खातिर यहाँ हूँ, कहीं इसका हक ना जाया हो जाए। मुंह संभाल के बोलो, लश्कर इस्लाम और किसी का हक जाया करे। मैंने भी इससे यही कहा है, इसकी भेड़ों की रकम इसे दे ताकि इस्लाम पे कोई बात ना आए। जाओ अपने सिक्के अमीर के खैमे में जाकर ले लो। आज उस खतरनाक जंग में जिसकी तैयारी में कई दिन गुजर गए, इसे सिक्के दें ताकि जिंदा सलामत इस बयाबान से अपने घर को लौटे। कितनी बार कहूं कि संदूक में भेड़ों के लिए सिक्के नहीं है मेरे पास। बस थोड़े से सिक्के दें ताकि यहाँ से चला जाए। बस भी करो, आपने मेरे दिमाग से सब मंजर भुला दिए। अब जाओ यहाँ से उम्मे सईद। फिर इस बेचारे का क्या? इसके भेड़ थे कितने? 13 थे। 20 थे और मैंने खुद ही उन्हें पकाया था। इस औरत को खरीदा है? अपने इस शागिर्द से कहो कि फजूल ना बोले। मैंने खुद सिपाहियों से भेड़ें ली थी, 13 थी। तुम बताओ कितनी भेड़ें थी तुम्हारी? 20 थी। ये दोनों झूठे हैं। बस भी करो, माल की हवस है इन दोनों को। मुझे लिखने के लिए खामोशी चाहिए। बाहर जाओ, जब फैसला हो जाए कि कितनी भेड़ें थी फिर अपने सिक्कों का तकाजा करना। फिलहाल खैमे से बाहर जाओ। अगर इसके सिक्के अबू शुजा की संदूक में हुए तो इसे मिल जाएंगे। जाओ यहां से। चरवाहे, तुम्हारी यादाश्त कमजोर है। यादाश्त की कमजोरी कम अक्ली से बेहतर है। मैंने कोई देहाती इतना हाजिर जवाब नहीं देखा। क्यों इसे अपना हक नहीं लेने देते? क्योंकि ये अपने हक से ज्यादा मांग रहा है। उस रात 20 भेड़ें थी। मुझे 13 की तादाद पर कोई शक नहीं है। वो लड़की जिसने उस रात भेड़ें ली थी वो अभी भी बावर्ची खाने में है। यकीनन वो बेहतर जानती है। तुम कहाँ? अपनी यादाश्त के इत्मीनान के लिए। इस खैमे से अपनी नजरें मत हटाओ। अबू शुजा जिन है, ये ना हो कि वो गायब हो जाए और तुम उसे ढूंढते फिरो। इस बेचारे को अब जाने दो यहाँ से। कोई भी चलता फिरता आए और खलीफा के माल से यूं ही सिक्के ले जाए। गोश्त को तो चबा चबा कर खाए, आप चाहते हो कि इसका हक भी ना दो। उसे अपना हक मिलेगा, 13 भेड़ों का। पता नहीं क्यों इतना फजूल बोलते मैं सईद, पता नहीं तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो। सीधा साधा है, इसकी आंखों में हया नहीं देखी। मैं नहीं जानती, सुबह से किसी शख्स ने इसे भेजा है इब्ने सबीग के लिए। कौन? इब्ने सबीग? मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि ये उस लश्कर का सिपाही है भी या नहीं, और खुद भी नहीं जानता। उसी की तलाश में था। मुझे इसकी सादगी पर तरस आ गया। हसन बेटा, तुम हो? यहीं रुको, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग अभी शुरू भी नहीं हुई और तुमने गनीमत भी जमा कर ली। ये अबू शुजा का सामान है, उसने कहा था कातिबों के खैमे तक पहुंचा दूं। अब और सिक्के? मैं पहले भी कोई सिक्के नहीं लाया। घोड़ों की नाल है। बताया नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? एक मसले के हल के लिए खड़ा हूं। बावर्ची खाने के बाहर? 2 दिन पहले पकाने के लिए यहाँ भेड़ें लाई गई थी। अब उनकी तादाद के हवाले से इख्तलाफ है। वो 20 भेड़ें थीं, तो इख्तलाफ कैसा? कल मैं उसे अमीर के खैमे लेकर गया था ताकि वो अपनी रकम वसूल कर ले। वसूल की? हाँ। आओ कातिबों के खैमे तक।
तुम्हारी मदद करूं। खुदा तुम्हें इसका अजर दे, ये वाकई बहुत वजनी है। ये चंद कदम भी गनीमत है मेरे लिए। मेरी इजाजत के बगैर क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आम है। तुम्हें यहाँ रहने के लिए क्यों भेजा गया है मैं नहीं जानता। मुझे मुआफ कर दो कातिब। अगर अपने साथ ये ना ले जाता तो अमीर मुझसे खुश ना होता और उसके करम के खजाने से ये सिक्के इनाम में ना मिलते। तुम यही तहरीरें लेकर गए थे, सब की सब वापस ले आए हो? हाँ, तुम मुतमईन रहो। बिल आखिर हमारी तरफ भी आ गया। किसका कह रहे हो? अमीर का जासूस।